देख रहे हैं मौसम कितना अच्छा है, हवा चल रही है, तो चलो बहुत मज़ा आ रहा है वीडियो बनाने में। Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Shiva Nandi, and in this video today I'm going to be discussing about my new journey, how I overcome pressure, everything related to my journey, which divides this video into three parts. The first part is the situation before me, the situation during the NEET prep or exam, and the situation after NEET. So three parts are up, and also I'm going to be telling you what are my plans after NEET 2025, and how I managed to write the history's most toughest paper, whatever situations that one has to face, and what are the difficulties that one can overcome. So yeah, watch this video till the end, because everything is going to be super clear if you are in doubt. And yeah, so let's move ahead, and also to subscribe to my channel. आप देख रहे हैं मौसम कितना प्यारा है. So coming into the situation before the exam, like how मैं कैसे PCB लिया मैंने and all those things were me. तो पहले तो एज अ रेगुलर स्टूडेंट मैं अच्छी थी पढ़ाई में, 10th में मेरे अच्छे खासे मार्क्स आए थे, तो 11th एंड 12th आई ऑप्ट फॉर साइंस. मैथ्स नहीं लेना था, तो बायो वाज द ओनली ऑप्शन, PCB. एंड उसको ऐसा फॉलो करते हुए आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द नीट एग्जाम. 11th एंड 12th मैंने LN ऑफलाइन से किया था. आई वॉज नॉट इन होम, मैं घर से दूर रह के करती थी, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक आई बिकेम अ लिटिल डिस्ट्रैक्टेड ऑफ कोर्स. एंड इफ यू आर मूविंग आउट ऑफ योर होम, सो यू आर अ किड ओनली एंड दैट एज इन 16 समथिंग, सो आपको उतना नहीं रहता, एंड यू हैव टू फेस अ लॉट ऑफ लाइक सिचुएशन. तो मेरे लिए इट डिडंट वर्क आउट, so experience was not good regarding the studies, or maybe I was not able to study that much in 11th and 12th. So my 11th and 12th after जब मैंने पहली बार नीट दिया था into 2024, so my result was not so good, but 2025 में मैं I took a drop of 1 year, and then I studied so hard. I literally studied hard. I sacrificed a lot of things. You have to sacrifice a lot of things, of course, if you have to become a doctor. And so in order to become a doctor, I studied so hard, and then also you मतलब क्या ही बताऊँ मैं, you come across this thing which is history's toughest exam. वहाँ पे आप जा रहे हैं एग्जाम हॉल में, and you are seeing the paper and your hands are shivering. Especially if you are a doctor, तो आपके दिमाग में रहता है वो प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है. You sacrifice a lot of things. I gained a lot of weight, especially, and of course if you are going to become a doctor, then your life is going to be really uncertain, really pressurized. You have to do the hard work, otherwise nothing is going to work. You have to put all those efforts. Fruit will come, but for that also you have to do the hard work, and you have to sacrifice a lot of things, because I sacrificed a lot of things. So 11th 12th की बात करें तो मैंने आपको बता दिया, मैंने LN ऑफलाइन कोचिंग से किया था, and then dropped. I was on phone. I prepared for online PW batch. This was the story which I want you guys to know, that how I started preparing for the NEET exam. So coming into the second point, which is how I write the exam, or during the NEET exam, what I did. कल तो मैंने सुबह थोड़ा बहुत अपना किया था रिविजन. तो जैसे तैसे आपकी चेकिंग वगैरह होता है, आप अंदर जाते हो एग्ज़ाम हॉल के, एंड देन आपको मिलता है लाइक OMR वगैरह फिल करने को. एंड मेरे साथ क्या हुआ था, मैं हमेशा से अच्छा OMR फिल करती हूँ. मेरे जीवन में आज तक कोई गलती नहीं हुई OMR फिल करने में, बट इन नीट 2025 क्या हुआ था कि कुछ गलती हो गई थी. तो बिकॉज ऑफ दैट आई पैनिक्ड अ लॉट. आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड, आई वॉज लिटरली फ्रस्ट्रेटेड. मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई, मैं बहुत ज़्यादा लाइक शिवर करने लगी, सो माय हैंड्स वर लाइक शिवरिंग, वाज लेफ्ट आउट. एंड देन मैंने जैसे तैसे मैनेज किया अपने आप को फिर से जोड़ा. यू हैव नो टाइम टू थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स rather than the exam. So I managed to get myself, and then the NEET 2025 exam sheet, question paper था. एंड जैसे मैंने खोला, मैंने सोचा पहले देख तो लूँगी फिजिक्स कैसा है, राइट. तो मैंने खोला, फिजिक्स का पहला क्वेश्चन देखा, which was about 6 lines long, I guess. ओके, सॉरी फॉर दिस हवा थिंग. अगर हवा की वजह से आपको आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही है तो
सो या आई वॉज टेलिंग कि जैसे मैंने एग्जाम देखा, उसका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने खोल के देखा, आई वॉज लाइक लिटरली इन शॉक। आई वॉज लिटरली इन शॉक। मैं थोड़ा 20 सेकेंड्स का मैंने थोड़ा ऐसे क्लिक करा, एंड देन आफ्टर मैंने अपने आप को थोड़ा मोटिवेट किया, and then I started writing the exam as usual from bio, then chemistry and then physics. Again, अगर मैं आपको इतना करना है, that is, I mean the pressure is huge there, and you are writing your career. You are writing your career. मुझे सिर्फ एक चीज़ में फोकस कर रहा था, that was writing the exam. And I managed to write the exam. I managed to solve as much as questions as I could solve in that time frame. And सो 3 घंटे का पेपर था। आई रिमेंबर 2.5 घंटा से ज़्यादा मुझे लगा था अकेला बायो एंड केमिस्ट्री सॉल्व करने में, एंड द टाइम विच लेफ्ट फॉर फिजिक्स वॉज वेरी लेस। आई पैनिक, आई वॉज गोइंग लाइक अ चैट, ऐसे जाता ना वैसा। तो the time was really small. The time was literally small, and I could not process at that moment. I just मैं लिखते जा रही हूँ, पेपर सॉल्व करते जा रही हूँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। और एक थिंग जो मुझे बहुत बुरी लगती है, आई थिंक द गवर्नमेंट शुड चेंज दिस थिंग। व्हाट वाज माय पॉइंट व्हिच आई वाज गोइंग टू टेल यू वाज कि जैसे अपन एग्ज़ाम लिखते हैं एंड बीच में यू आर गेटिंग अटेंडेंस शीट जिसको आपको फिल करना है, यू हैव टू साइन, यू हैव टू डू द थम मार्क हियर एंड देयर। आई मीन दैट इज फ्रस्ट्रेटिंग। यू आर राइटिंग योर कैरियर एंड इन बिटवीन में समवन इज डिस्टर्बिंग यू। अगर तुम एग्जाम के पहले कर दो 10 मिनट और एक्स्ट्रा ले लो, एग्जाम के बाद कर लो 10 मिनट, रुकवा लो बच्चों को, दैट इज नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम, राइट? तो मुझे ये चीज़ बहुत बुरा लगता है। आई थिंक इसका कुछ होना चाहिए। आई लिटरली थिंक कि आपका 10 मिनट एक तो वैसे ही वेस्ट हो जाता है। यू आर फ्रस्ट्रेटेड, यू आर राइटिंग योर एग्जाम, एंड आई थिंक इन बिटवीन नो वन शुड कम टू यू एंड टॉक टू यू, क्योंकि आपका फोकस बिगड़ता है। योर फोकस changes, your activity, your mindset changes in that frame, right? Because you have only 1 minute per question, right? So that's how I managed to write the NEET exam. As I told you, I managed to solve as much as questions as possible. मैं बाहर निकली, and मैं अपने एग्जाम हॉल से बाहर निकली, and I talked to some of the students. They were also very disappointed. So मुझे लगा कि चलो ठीक है, मेरा एग्जाम अकेले अच्छा नहीं गया है। Everyone is somehow mourning. I was exiting the main gate. मैंने देखा कि बच्चे रो रहे थे, ठीक है, तो मुझे लगा कि चलो इस बार भी कुछ ऐसा होगा। इन माई माइंड आई वॉज ओनली थिंकिंग दैट दिस एग्जाम वॉज मोर टफ देन 2016 एग्जाम, एंड वैसे ही हुआ। दिस एग्जाम वॉज द हिस्ट्रीज टफेस्ट एग्जाम। आपको पता चल जाता है दैट व्हाट इज द लेवल, राइट? इफ यू मैंने इतना पढ़ा था, आई थिंक एवरीवन इज स्टडीड सो हार्ड फॉर दिस एग्जाम। सो या मेरे साथ ये सब हुआ था, एंड आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। मैं जैसे ही कार में बैठी, आई रिमेंबर द ओनली थिंग आई रिमेंबर वॉज दैट आई क्राइड अ लॉट। आई लिटरली क्राइड अ लॉट। तो मम्मी कैसे गले लग के रो रही हो मम्मी। सो दैट वॉज द थिंग, द सिचुएशन एंड द प्रेशर। आई मीन मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। देखो, मैं जैसे ही कार में बैठी, राइट, उसके बाद मैं रोई। फिर मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था। आई डिडंट ईट एनी थिंग। मैंने खाया था ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स बस लिए थे मैंने। एंड आई रिमेंबर वन नाइट बिफोर द नीट एग्जाम, माई सिचुएशन, मैं इतना पढ़ चुकी थी, मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी कि मेरी जो तबीयत थी वो रात में ख़राब हो गई थी। आई वीकनेस बहुत ज़्यादा थी मेरे अंदर उस समय। उसके बाद आई एट समथिंग, आई देन 2 दिन तक, उसके बाद मैं आपको लिख के देती हूँ, 2 दिन तक तो मैं लिटरल ट्रॉमा में थी। मतलब मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ। 1 वीक मुझे लगा पूरा प्रोसेस करने में, दैट सिचुएशन, दैट हालत से बाहर निकलने में, वो ट्रॉमा से बाहर निकलने में कि अच्छा देखो, अच्छा चलो हो गया है एग्ज़ाम, अब तुम दूसरा चीज़ देखो, राइट? तुम देखो कि तुम्हारा आगे क्या हो रहा है। So coming into the situation after NEET exam, as I told you, that I cried, of course, and then I hang out with some of my friends. तो मुझे थोड़ा ठीक लगा। फिर मैंने थोड़ा घूमा फिरा, फिर मैं 1 वीक बाद ऐसे नॉर्मल माइंड स्टेट में आई। फिर हो गया ना, दिस थिंग इज हैपन भाड़ में जाए। मैंने अपना पूरा दिया था, मेरे पास जितना था मैंने दिया था। मुझे पता था कि मेरे पास जितना था मैंने दिया था, एंड तो मुझे उतना रिग्रेट नहीं कि चलो पेपर थोड़ा ख़राब गया या जो भी गया हो,
आगे का प्लान देख रही हूँ, सब भगवान के ऊपर है. सो दिस वॉज माई लिटिल थॉट आफ्टर 1 week. आई वॉज नॉट एबल टू थिंक that what I'm going to do after this exam and what are my plans gonna be after this exam. So yeah, that all thing happened, and then after that I started learning some new skills. जैसे मैं अभी currently I'm learning car driving. I'm learning, I'm journaling, I am learning some another new skills. I'm some like making videos in my meantime, and of course, you have a lot of time after nature and after everything feels surreal. Every every time feels surreal that okay, you have this time right now. If I tell you my plans after me, then I am currently seeing some good private colleges because I'm also seeing some government मतलब मेरा है, but I don't think that I'm gonna get government college. तो मैं प्राइवेट का ही देख रही हूँ. आई काउंसलिंग वगैरह मैं सब चीज़ का डिटेल्स ले रही हूँ. लाइक काउंसलिंग होगा एंड देन कॉलेजेस होगा. कॉलेजेस की लिस्ट तैयार कर रही हूँ एंड सब कॉलेज से मैंने बात भी किया है, बट जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक कुछ नहीं हो जाता है. अदर देन MBBS ऑल्सो आई एम सीइंग लाइक BMS, इन सब का भी मैं नॉलेज अभी ले रही हूँ कि जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक मैं आई एम लाइक गोइंग टू टेक ऑल ऑफ दोज नॉलेज कि क्या क्या हो सकता है आगे, क्या क्या कर सकती हूँ. इफ़ नॉट MBBS देन व्हाट, राइट? इफ़ नॉट MBBS देन सो यू शुड ऑलवेज हैव अ प्लान बी. सो प्लान बी होना बुरी बात नहीं है. तो आई एम करेंटली वर्किंग ऑन अ प्लान बी, लर्निंग सम न्यू स्किल्स, एंड बाकी मीन टाइम में आई सब काम में थोड़ा हाथ बता देती हूँ ऑफ माई मॉम एंड डैड के. अभी तो बस लेलापन ही चल रहा है एंड आई एम जस्ट चिलिंग राइट नाउ एंड what should I tell you? I told you everything. And what can you take from this video is that life is very unfavorable, life is very uncertain. Of course, you have to be prepared for the uncertain, for the unfavorable things that can happen. So NEET exam has taught me a lot of things, and if अगर ये वीडियो अच्छा चला तो मैं NEET के जो मुझे लर्निंग्स मिली है that I also have wrote in my diary, मैं वो भी आपसे शेयर करूँगी. एंड दैट इज़ ट्रस्ट मी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, फोकस ऑन योर जर्नी नॉट ऑन अ रिजल्ट, because every journey teaches you something that is really really important rather than the you know fruit. Trust me, the overthinking is not going to do anything else. The only thing to get success is doing the hard work, doing the hard work in the right amount, doing the smart work in the right amount, managing your time, controlling yourselves. You have to have a lot of control in yourselves, and this was all the thing which I learned. And also मैंने आपको बोला अगर ये वीडियो अच्छी चली मैं एक और वीडियो बना दूँगी. एंड या आई थिंक आई हैव टोल्ड यू लिटरली एवरीथिंग. एंड मैं बता रही हूँ बहुत सारे 2025 कैंडिडेट्स की जो सिचुएशन है वो मेरे जैसी होगी. दैट डजंट मीन दैट यू आर गेटिंग डीमोटिवेटेड. नो, there are a lot of options other than MBBS also. There are a lot of options other than crying also. So you have to be, you have to have a little patience. And हो सकता है कि I am unable to explain myself, but try to understand the emotions and the words behind my this world camera. And या हो सकता है मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स उतनी अच्छी नहीं हो. I just told you my heart out. जो भी मेरे मन में था, I told you guys. This video is really unscripted. So yeah, that was the end of this video. And I think if you had any doubt, you can ask in the comment box. You can give me some videos related ideas also. And also do subscribe to my channel. Of course, आपको अच्छी खासी वीडियो देखने को मिलती रहेंगी आपको. And please comment down your favorite part of this video. So that's it for the video. See you next time. Till then, take care. Bye.